Question number 201. Pollination in grasses takes place through entomophily, anemophily, ornithophily, क्लेस्टोगैमी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ग्रासेस के अंदर जो पोलिनेशन है वो वेंड के थ्रू होती है और इसको नाम देते हैं एनेमोफाइली का. क्वेश्चन नंबर 202. द प्रोसेस बाय विच सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इज नॉन एज पार्थिनोकार्पी, एपोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस, एपोस्पोरी. Correct answer is option A. Parthenocarpy is a process through which seedless fruits are produced. Question number 203. The formation of embryo directly from the nucellus and integument is known as एडवेंटिव. तो ये एडवेंटिव नहीं है बल्कि एडवेंटिटिव पोली एम्ब्रियनी है. ऑप्शन बी एपोस्पोरी, ऑप्शन सी एपोगैमी, ऑप्शन डी एपोमिक्सिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Formation of embryo directly from nucellus and integument is known as adventitive polyembryony. Question number 204. What is the direction of movement of sugar in phloem? Non-multidirectional, upward, downward, bidirectional. Correct answer is option D. phloem के अंदर जो शुगर मूवमेंट है ये बाई होती है. Question number 205. Adding solute to the pure water will cause the development of positive water potential, more positive potential, more negative water potential, negative water potential. Correct answer is option D. प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है. जैसे ही उसके अंदर सल्यूट मालिक्यूल ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ़ वाटर मालिक्यूल रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस होकर नेगेटिव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 206. बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांट्स आर लार्ज एंड ए ग्रेनल, स्मॉल एंड ग्रेनल, लार्ज एंड ग्रेनल, स्मॉल एंड ए ग्रेनल. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए. C4 प्लांट्स के जो लीव्स हैं जिनमें क्रॉन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है उनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो लार्ज और ए ग्रेनल हैं. क्वेश्चन नंबर 207. एन एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जॉन इंजनहाउस, जुलियन वॉन सैच, T.W. एंगलमैन और Cornelius Van Niel. Correct answer is option C. Action spectrum of photosynthesis was described by T.W. Engelmann. Question number 208. Gizzard, which is also known as proventriculus in case of cockroach, lies between esophagus and stomach, crop and mesenteron, mesenteron and ileum, esophagus and crop. Correct answer is option B. Gizzard or proventriculus of cockroach lies between crop and mesenteron. Question number 209. In earthworm, circular muscles are highly developed in body wall, gizzard, typhlosole, pharynx. Correct answer is option B. Gizzard is a part of earthworm body where circular muscles are highly developed. Question number 210. Sum total of genes in a population is known as genotype, karyotype, genetic constitution, gene pool. Correct answer is option D. Gene pool is the combination of sum of all the genes of a population. Question number 211. Continental drift explain which process? Mass extinction, distribution of fossil on earth, geographical upheavals, all of the above. Correct answer is option D. Continental drift theory, which was given by Alfred Wegener, it explains the mass extinction as well as distribution of fossils on earth as well as geographical upheavals. Question number 212. Wings of bat, locust and pigeon are vestigial organ, exoskeletal structure, homologous organ, analogous organ. Correct answer is option D. Analogous organs are functionally similar but they have different origin. So wings of bat, locust and pigeon are functionally similar because they all help in flying,
So they are analogous organ, but they have different origin. Question number 213. The most abundant water pollutant is detergents, pesticides, industrial waste, ammonia. Correct answer is option C. मोस्ट अबंडेंट वाटर पोल्यूटेंट जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जो कि पॉन्ड्स, लेक्स और स्ट्रीम्स के अंदर जो है वो पोल्यूशन काज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 214. Minamata disease first occurred in Japan, Russia, China, Korea. Correct answer is option A. Minamata disease was first discovered in Minamata city of Japan, and it is a neurological disorder caused by the mercury poisoning. Question number 215. Cavity formed during gastrulation is known as primitive gut, gastrocole or canteron, all of the above. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी. गैस्ट्रोलेशन के दौरान जो कैविटी बनती है उसको प्रिमिटिव गट, गैस्ट्रोकोल या फिर आर कैंटीरॉन का नाम देते हैं. क्वेश्चन नंबर 216. रेटिना, आई लेंस, ब्रेन एंड स्किन आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी. Retina, eye lens, brain and skin and all other facial parts are formed from the embryonic ectoderm layer. Question number 217. The type of cleavage is an egg is determined by amount and distribution of yolk, number of egg membrane, size and location of nucleus, shape and size of sperm. Correct answer is option A. एग के अंदर क्लीवेज की टाइप जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द बेसिस ऑफ अमाउंट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक. क्वेश्चन नंबर 218. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 काजेज थैलेसीमिया, बेरी, पर्नीशियस एनीमिया, शिलोसिस. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो पर्नीशियस एनीमिया की डिजीज़ होती है. क्वेश्चन नंबर 219. बिलीरुबिन इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोसानिन, हीमोपोइटिन, हीमाटिन. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए. हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से जो है वो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है विद इन द लीवर. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. बिलीरुबिन इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. क्वेश्चन नंबर 220. T.O. Diner discovered bacteriophage, infectious protein, free infectious DNA, free infectious RNA. Correct answer is option D. T.O. Diner discovered the free infectious RNA, जिसको नाम देते हैं वायराइड्स का. तो T.O. डाइनर्स ने जो है वो वायराइड्स को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 220. Prophage is a viral genome which is freshly synthesized, inoculated to a bacterium outside the host cell, incorporated and integrated to the host genome. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी. लाइसोजाइनिक साइकिल के दौरान जो प्रोफेज है ये एक्चुअल में वायरल जीनोम है जो कि होस्ट क्रोमोसोम्स के साथ या होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 222. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन. तो यहाँ स्टार्ट में एन आता है. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन ऑप्शन ए. ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, मार्फोलॉजी और एंड एफिनिटीज़. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एफिनिटीज़ बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. Question number 223. The term new systematic was given by Julian Huxley in 1809, 901, in 1840 or in 1940. Correct answer is option D. साल था 1940 जब जोलियान हक्सले ने इंट्रोड्यूस की टर्म न्यू सिस्टमैटिक. क्वेश्चन नंबर 224.
Spongiform encephalopathy is caused by prions, E. coli, or virus, fungus. Correct answer is option A. Bovine spongiform encephalopathy is a disease, or mad cow disease is a disease in case of cattle, and it is caused by prions. Question number 225. Which of the following is an occupational respiratory disorder? Botulism, silicosis, anthraxis, or emphysema? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि सिलिका के एक्सपोयर की वजह से या सिलिका को इनहेल करने की वजह से होता है। और इसी तरह से एस्बेस्टोसिस भी एक ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 226. व्हाट इज़ ट्रू इन केस ऑफ हनी बी? Male is diploid and female is haploid. Male is diploid and female is also diploid. Or male is haploid, female is haploid. Option D. Male is haploid while the female is diploid. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। हनी बी के केस में जो मेल है वो हैप्लॉइड होता है जबकि फ़ीमेल जो है वो डिप्लॉइड होती है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। Question number 227. A monosomic condition or abnormality in human is Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Edward syndrome, Down syndrome. Correct answer is option B. टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो है वो मोनोसोमिक कंडीशन होती है। टोटल 45 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 228. Genes for cytoplasmic male sterility in plants are located in chloroplast genome, mitochondrial genome, nuclear genome, cytosol. Correct answer is option B. Genes for cytoplasmic male sterility in case of plant is located on mitochondrial genome. Question number 229. Failure of separation of sister chromatids is known as fusion, non-disjunction, complementation, interference. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। अगर सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है वो सेपरेट नहीं होते तो इस फेलियर को नाम देंगे नॉन डिसजंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 230. हंटिंगटन कोरिया डिजीज़ अपीयर्स एट द एज ऑफ 25 to 55 years, 15 to 25 years, 50 to 60 years, or 10 to 15 years. Correct answer is option A. Huntington chorea appears at the age of 25 to 55 years. Question number 231. A fruit fly exhibiting both male and female trait is known as heterozygous, gynandromorph, hemizygous, gynander. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। गाइनेंड्रोमॉर्फ फ्रूट फ्लाई जो है उसके अंदर मेल और फीमेल ट्रेड्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 232. प्लांट ऑन विच होगोडिवरीज बेस्ड इज एवोल्यूशन थ्योरी इज एंटीरिनियम माजोस, लेथिरस ओडोरेटस, इवनिंग प्राइमरोस, पाइसम सेटिवम। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। होगोडिवरीज ने अपनी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है वो इवनिंग प्राइमरोस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके दी, और इवनिंग प्राइमरोस का साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लमार्कियाना। क्वेश्चन नंबर 233. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर एंजाइम इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज अमाइलेज, गामा जीटीपेज, और अल्कलाइन फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। एसिड फास्फेटेज एंजाइम का लेवल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर मैक्सिमम होता है, तो इसलिए इसको एज ए मार्कर एंजाइम यूज़ करते हैं इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 234. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, फोर्थ जनरेशन वैक्सीन। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी।
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 235, ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंट्रोल्ड बाय FSH and LH, FSH and LTH, ACTH and LH, GH and ADH। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन और ग्रोथ जो है वो फॉलिकुलर फेज में होती है और इसको कंट्रोल किया जाता है थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन LH के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 236, इमीडिएट मेम्ब्रेन कवरिंग द मैमिलियन एग इज कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, कोरियन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मैमिलियन एग के अराउंड जो इमीडिएट मेम्ब्रेन कवरिंग होती है उसको जोना पेलोसिडा का नाम देते हैं, जबकि अकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस वगैरह में यही प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है उसका नाम है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 237, HCG, HPL and relaxin are produced in women at puberty, during pregnancy, before puberty, at menopause। Correct answer is option B। Human chorionic gonadotropin hormone or human placental lactogen hormone and relaxin are the three marker hormones which are produced during pregnancy। Question number 238, children having A and B type of blood group, what are the blood types of parent? A and O, AB and A, AB and O, A and B। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो तो उससे जो बच्चे होंगे उनमें उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए और बी टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 239, phenotypic ratio of monohybrid F2 progeny of incomplete dominance is 1-1-1-1, 2-1-1, 1-1, 3-1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो F2 प्रोजेनी है उसकी फिनोटिपिक रेशो होती है 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 240, ग्लोब्यूलर प्रोटीन विच मास्क एक्टिव साइट ऑफ F एक्टिन प्रोटीन इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, मायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Troponin is a globular protein which masks the active site of F actin। Question number 241, centrum of 8th vertebra of frog is Proceolus, Amphicoelus, Amphiplatean, Amphicoelus। Correct answer is option D। फ्राग का जो 8th वर्टिब्रा है उसकी सेंट्रम एम्फीसियोलस टाइप होती है, मीन सेंट्रम इज कनकेव फ्रॉम बोथ साइड्स। क्वेश्चन नंबर 242, सिलोमेट एनिमल इन विच ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस इज प्रोटोस्टोम्स, ड्यूट्रोस्टोम्स, ब्लास्टोमेट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ड्यूट्रोस्टोम्स एनिमल्स के अंदर जो है वो ब्लास्टोपोर से सेकेंडरी ओपनिंग या एनस बनता है। क्वेश्चन नंबर 243, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज cDNA टाइप, zDNA और ddNA टाइप और bDNA। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज bDNA or right-handed DNA। Question number 244, which one of the following is not applicable to RNA? Chargaff rule, complementary base pairing, 5 phosphoryl and 3 hydroxyl, heterocyclic nitrogenous bases। करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन ए है। चरगाफ रूल RNA पे अप्लाइकेबल नहीं है क्योंकि RNA के अंदर थाइमीन एब्सेंट होती है और थाइमीन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 245, मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अकर्स इन गुआनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
मैक्सिमम नाइट्रोजन एटम जो है वो गुआनिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, बेंडिक्ट रिएजेंट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, रिड्यूसिंग शुगर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए बेंडिक्ट रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 247, which one is used as a vector for introducing a DNA fragment into human lymphocyte? Lambda-phage, tie plasmid, retroviruses, PBR322. Correct answer is option C. Retroviruses are used as a vector for introducing DNA fragment into human lymphocyte. Question number 248. Condensation of chromosome with visible centromere occurs during G1 phase, G2 phase, S phase, M phase. Correct answer is option D. क्रोमोसोमल कंडेंसेशन जो है वो माइटोटिक फेज में होती है और मैक्सिमम कंडेंसेशन जो है वो मेटाफेज स्टेज पे होगी। क्वेश्चन नंबर 249, pyramid of number in forest ecosystem is upright, inverted, irregular, linear. Correct answer is option A. Pyramid of number in forest ecosystem is upright, while in case of tree ecosystem it is inverted. Question number 250, which is mainly responsible for extinction of wildlife, hunting of flesh, destruction of habitats, or pollution of air and water? All of these. Correct answer is option B. Habitat destruction is the main reason behind extinction of wildlife. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके वो पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं।